Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today topic morphology of flowering plants. Morphology consists of two terms, morph and logy. Morph means forms, logy means a study. Okay, it means morphology is the branch of science deals with a study of form, a structure and relative position of different organs. Okay, morphology can be divided into two parts, external morphology and internal morphology. External morphology means a structure of a study of external structure of the livings or plants. External organs of plants are root, stem, leaf, flower, fruits, etc. And internal morphology means anatomy and histology. Histology means a study of tissue. Anatomy means a study of internal structures. Okay. In case of plants, histology and anatomy both are mixed, इंटरमिक्स्ड, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ फॉर्म है. अब जनरली हम बड़ी ऑर्गन्स की अगर बात करें, सपोज दैट दिस इज ए सीड एंड यू नो सीड इज द पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ जैसा कि नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट. Angiospermic plant also called phanerogamous or spermatophyta that bears flower, fruits and seed is also included by fruits. Okay, suppose that this is seed. After germination of seed, generally two structures develops from embryo. Embryo develops radicle and plumule. These are the part of embryo also. Embryo का भी part कर सकते हैं. Radicle and plumule. Radicle forms root system. Radicle forms root system and plumule forms shoot system. ठीक है. Radicle forms root system, plumule forms shoot system. अब अगर हम किसी प्लांट्स की बात करें, सपोज दैट these are the different parts: root, a stem, leaf. In a stem, internodes are present. Internode. Okay. Flowers, buds. In plants, two types of buds are present. कुछ buds यहाँ से निकला भी देखिए है. This is called axillary bud. And this is called terminal bud. A part root system, these parts shoot system. Okay, तो root system और shoot system. According to guidelines of CBSE, for this session, some topic means root, a stem, leaf are deleted from the syllabus, removed from the syllabus. Okay. सो हम लोग अभी रिमोट टॉपिक को छोड़ करके शुरू करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है लेसन में, डेट इज इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम. इनफ्लोरेसेंस इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम. तो हम लोग देखेंगे इनफ्लोरेसेंस. सिंपली इनफ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. Inflorescence means group of flower. Suppose that this is a flower. अगर ये flower है,
So a stalk of flower is called pedicel. A stalk of flower is called pedicel. If pedicel present in flower, that is called pedicellate flower, and pedicel absent, that is called sessile flower. Okay, pedicellate flower with pedicel, sessile flower without pedicel. And if more than one flowers arranged on a axis, this like बहुत सारा फ्लावर अगर एक ही एक्सिस पर डेवलप हो गया, this structure is called inflorescence, and the main axis on which more than one flowers are situated or arranged, that axis is called peduncle. So axis, a stalk of inflorescence is called peduncle. A stalk or axis of flower is called pedicel. ओके, तो अभी हम लोग को जानना है इनफ्लोरेसेंस के बारे में। सी इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस मीन्स पेडंकल. ओके, so arrangement of flowers on peduncle is called inflorescence. Inflorescence is of 3 types. ऐसे मेनली 2 है, लेकिन मैं 3 नाम बता रहा हूं. रेसिमोस, साइमोस एंड अ स्पेशल टाइप. Racemose, cymose and a special type is modified form of racemose and cymose. इसी का एक कुछ न कुछ modified form है. So mainly inflorescence of 2 types, racemose and cymose. First we know about racemose. Growth of main axis is indefinite. ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, अगर ये मेन एक्सिस है जैसा कि बताया मैं पेडंकल, अब इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस होते रहेगा. इनडिफिनिट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा तो काफी इसका हाइट हो जाएगा. एक पीरियड के बाद, मीन्स रिप्रोडक्टिव पीरियड के बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन ऐसे कंटिन्यूअसली ये ग्रो करते रहता है. फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल मैनर, एक्रोपेटल मैनर और सक्सेशन. एक्रोपेटल सक्सेशन मीन्स ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट इन बेसल पार्ट, न्यू और अंग फ्लावर एट एपिकल पार्ट. दिस लाइन, जो भी ओल्ड फ्लावर होगा वह नीचे की तरफ होगा, जो न्यू फ्लावर यंग फ्लावर होगा ऊपर की तरफ होगा. ओल्ड पहले आएगा, यंग बाद में आएगा. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन. और कह सकते हैं सेंट्री पेटल सक्सेशन. सेंट्री पेटल सक्सेशन, इसी को हम लिख सकते हैं फ्लावरिंग ऑफ फ्लावर्स. फ्लावरिंग अकर्स इन सेंट्रीपेटल सक्सेशन. ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावरिंग इन सेंट्रीपेटल मीन्स बाहर से अंदर की तरफ. अगर कोई फ्लावर्स बर्ड कंडीशन में है, सपोज दैट दिस इज द बर्ड ऑफ फ्लावर, ठीक है, इन फ्लावर डिफरेंट पार्ट्स आर प्रेजेंट, तो सबसे पहले बाहर का पार्ट ओपन होगा, फिर इसके अंदर वाला लेयर, फिर उसके अंदर वाला लेयर. यानी ब्लूमिंग का जो प्रोसेस होगा धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ होगा. दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल सक्सेशन.
ओके। और इन अदर वर्ड्स पहले नीचे वाला हुआ तो बाहर चला गया। जैसे जैसे अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल पार्ट कौन है, सबसे ऊपर, दिस इज सेंट्रल पार्ट, एंड इट फ्लावर्स ओपन्स लास्ट, सबसे बाद में ऊपर वाला, पहले नीचे वाला। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रेसिमोज। और इसी का उल्टा कर दो तब निकल जाएगा साइमोज। साइमोज का क्या होगा, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड बिकॉज फ्लावर डेवलप्स एट एपेक्स और टिप ऑफ द मेन एक्सिस। अगर ये मेन एक्सिस है तो मेन एक्सिस के टिप पर पहले फ्लावर डेवलप हो गया, एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर एट एपेक्स growth of main axis is limited. Flower are arranged in basipetal succession. Basipetal पहले ऊपर में डेवलप करेगा, उसके बाद यहां से ब्रांच निकला, ब्रांच में फिर ऊपर में, इसके बाद यहां निकलेगा फ्लावर, दिस लाइक। इट मीन्स सबसे पहले बीच वाला सेंटर वाला फ्लावर ग्रो करेगा, बाद में साइड वाला फ्लावर ग्रो करेगा। दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन और सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। सेकंड, साइमोस, मेन एक्सिस पेडंकल टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर सो द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज डिफिनिट। ऊपर में फ्लावर ग्रोथ कर जाएगा एक्सिस पर, रिजल्ट क्या होगा, इसका ग्रोथ स्टॉप कर जाएगा। फ्लावर्स आर अरेंज इन बाइसिपेटल सक्सेशन, फ्लावरिंग अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर। These are the main two types of inflorescence. Now, racemose inflorescence is also divided into different parts. Mainly in two parts. Racemose को mainly हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, simple and compound. Simple and compound. Okay. And types of simple: रेसिम, स्पाइक, स्पेडिक्स, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिचुलम। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। देखते हैं आगे। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। टाइप्स ऑफ सिंपल: रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम्ब, अम्बेल एंड कैपिचुलम। ये सिंपल है, कंपाउंड और सिंपल लगभग एक जैसा है। डिफरेंस क्या है, जो रेसिम का स्ट्रक्चर होगा, सपोज दैट दिस इज रेसिम, इन रेसिम सिंगल पेडंकल इज प्रेजेंट, एंड इफ पेडंकल डिवाइड्स इनटू मोर देन वन पार्ट्स एंड ईच ब्रांच एक्ट्स एज ए रेसिम। इसी रेसिम में अगर ब्रांच हो जाए और प्रत्येक एक ब्रांच रेसिम की तरह हो जाएगा, तब उसका नाम दे देंगे कंपाउंड। इसी तरह का स्पाइक में ब्रांचिंग होगा, कंपाउंड। कैटकिन में ब्रांचिंग होगा, कंपाउंड। सभी का कंपाउंड फॉर्म ब्रांचिंग फॉर्म है, सिंपल में सिंगल पेडंकल होगा। ओके, सो फर्स्ट वी नो सिंपल। सिंपल में देखें, पेडंकल इज अनब्रांच्ड, मेन फीचर्स। और कंपाउंड में पेडंकल ब्रांच हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट टाइप इज रेसिम। पेडंकल is long and elongated on which pedicellate flowers are arranged. मैनर क्या होगा, एक्रोपेटल मैनर। एग्जाम्पल मस्टर्ड। वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज सिंपल है, रेसिमोज का भी सिंपल का फर्स्ट टाइप रेसिम, that is the simplest type of inflorescence. This is the main axis or peduncle, and pedicellate flower means pedicel, flower having pedicel, a stalk,
तो इस तरह का बहुत सारा इस पर फ्लावर्स लगा होगा। जो भी ओल्ड फ्लावर होगा वो पहले आएगा, नीचे की तरफ होगा, और जो यंग फ्लावर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, न्यू होगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेसीम। ओके, और इसी में मस्टर्ड एग्जांपल बताया, और भी एग्जांपल देखें तो रेडिश एंड ईफ पेडंकल इज ब्रांच्ड, सपोज दिस इज पेडंकल, यह पेडंकल ब्रांच हो गया और इस पर फिर निकल गया पेडिसिलेट फ्लावर, दिस लाइक, तो एक रेसिमे हो गया। दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा। सो ग्रुप ऑफ रेसिम, ग्रुप ऑफ रेसिम इज कॉल्ड कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड रेसिम also called panicle. Example neem, gulmohar, etc. Okay. Second type of racemose is a spike. Second type is a spike. Second type is a spike. As like raceme, peduncle is elongated, this like peduncle is elongated as like raceme, but flowers are sessile, a stalk or pedicel absent in flower, this like, these are sessile flower without pedicel, फ्लावर है लेकिन पेडिसेल नहीं है और इलोंगेटेड पेडंकल है। एग्जाम्पल एक्रियांथस, इन हिंदी इट इज ऑल्सो कॉल्ड लठ जीरा। स्पाइनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट दैट इज स्टिक्ड विथ आवर क्लॉथ और बॉडी पार्ट्स। अगर इसके कांटेक्ट में जाएंगे तो इसमें कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो कपड़े में चिपक जाता है। तो हो गया सिंपल स्पाइक। अब अगर हम स्पाइक का कंपाउंड करेंगे बात, तो याद रखें आप कंपाउंड स्पाइक, एग्जाम्पल ग्रास फैमिली और भीट, ग्रैमनी फैमिली कहा जाता है, ग्रैमनी फैमिली, ग्रास फैमिली, एग्जाम्पल भीट। ओके, भीट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड स्पाइक। अब देखिए अगर यहां बात करें हम, मेन पेडंकल है, पेडंकल से ब्रांच निकला, ब्रांच पेडंकल, और इस पर फ्लावर है सिसाइल फ्लावर, दिस लाइक, इस तरह से बहुत सारे सिसाइल फ्लावर अगर निकल गए तो ये हो गया ग्रास फैमिली। एंड इन दिस केस, भीट के केस में देखें, सिंपल जो भीट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दिस लाइक, दिस लाइक गेहूं की बाली, ठीक है, दिस इज इनफ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ अ स्पाइक। अब यहां एक सीड है, सीड के ऊपर कवरिंग है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फिर एक बाहर कवरिंग है, इसका नाम है ग्लूम एंड पैलिया, these are called gloom, outermost covering, protective covering gloom, inner is called पैलिया। इसको आप याद रखेंगे, ornate, gloom and पैलिया are present in compound spike और in wheat, ठीक है। थर्ड इज कैटकिन, peduncle is elongated, big and thin,
फ्लावर्स आर सीसाइल एज लाइक, किसके जैसा हो गया, इसके पहले कौन था, स्पाइक, बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, सब कुछ स्पाइक के जैसा, इलोंगेटेड पेडंकल, सिसाइल फ्लावर, बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल मलबरी, एग्जाम्पल मलबरी, सहतूत, मलबरी सहतूत। Generally in mulberry, very thin and big peduncles are present on which numerous unisexual flowers are arranged. This like. अब unisexual, some inflorescence has male flower and some other female flowers, ठीक है। और हम लोग जो सहतूत को खाते हैं डेट इज फीमेल फ्लावर, वो फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होगा, इसका कंपाउंड का कोई स्पेशल केस नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ इज एस्पेडिक्स, थिक एंड लॉन्ग पेडंकल, flowers are pedicellate flower, means with a stalk flower, इसके फ्लावर में स्टॉक होगा। in some cases may be sessile flower, कुछ केस में सिसाइल फ्लावर भी हो सकता है। And these flowers covered by one or more large colorful bract called spathe. एग्जाम्पल मेज, बनाना, etc. अगर आप बनाना का केस की बात करें तो इस तरह से थिक पेडंकल, स्पेथे, न्यूमरस दिस लाइक स्ट्रक्चर्स, बनानास, सिसाइल और पेडंकल बोथ, यहां पेडिसिलेट होगा और इसके ऊपर एक कवर होगा, दिस इज कॉल्ड स्पेथी, दिस इज कॉल्ड स्पेथी, ओके। एंड एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एस्पेडिक्स, कंपाउंड एस्पेडिक्स का एग्जाम्पल याद रखेंगे, कोकोनट, कोकोनट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, इसी का ग्रुप यहां से ब्रांच निकलेगा और फिर प्रत्येक में ऐसा स्ट्रक्चर मिला, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड एस्पेडिक्स। एग्जाम्पल कोकोनट। नेक्स्ट कोरिम्ब, कोरिम्ब इज मोडिफाइड रेसिम with relatively short peduncle in which lower flower have much elongated pedicel। जैसा कि रेसिम की बात किया कि यह पेडंकल है, ऑन पेडंकल pedicellate flowers are arranged, but the length of pedicel of different flower, stalk of different flower is differ। जो पहले आया उसका लेंथ ज्यादा होता है, बाद वाला का लेंथ छोटा होता है, दिस लाइक। रिजल्ट क्या होता है, ऑल फ्लावर्स आर सिचुएटेड ऑन सेम प्लेन, दिस लाइक, सभी एक ही प्लेन पर अरेंज है।
So all flowers are on same level or plane. Example candy tuft. Example candy tuft. अब इसका अगर हम ब्रांच कर दें, पेडंकल है, पेडंकल को ब्रांच कर दें और प्रत्येक पर फिर स्ट्रक्चर ऐसा बना दें हम. ओके, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कोरिम. सो कंपाउंड, एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कोरिम, कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है, वो फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं है. दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. सो कंपाउंड कोरिम का एग्जांपल कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट अम्बेल. अम्बेल मीन्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर किसी एक एक्सिस के एक पॉइंट से फ्लावर्स निकलेगा, दिस लाइन. ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है. देखते हैं नेक्स्ट अम्बेल. अम्बेल इज मोडिफाइड रेसिम इन विच द फ्लावर्स हैव अ स्टॉक नियरली इक्वल लेंथ and arise from same points. Okay, suppose that this is, अब देखिए नोड से यहीं से बहुत सेम इक्वल लेंथ का पेडिसेल निकला. सब पे फ्लावर है, फॉर्म्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, दिस लाइक. ओके, and at the base of flower stalk wall of bract. bract a small leaf like structure. तो जहां भी बेस है, जहां से बहुत सारे फ्लावर्स निकले हैं, यहां लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक वॉल होगा, कॉल्ड इनवॉल्यूकरी. दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूकरी. ओके, एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक वॉल ऑफ फॉर्मिंग ब्रैक्ट्स फॉर्मिंग इनवॉल्यूकरी. एग्जाम्पल ब्राह्मी. ब्राह्मी एग्जाम्पल ऑफ सिंपल अम्बेल. सिंपल अम्बेल का पार्ट है. अब इसका कंपाउंड की बात करें, सो कंपाउंड अम्बेल, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड अम्बेल कोरिएंडर, धनिया. कोरिएंडर धनिया, ठीक है, एंड क्यूमिन, जीरा. धनिया और जीरा की बात करें, यही सेम स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे ब्रांच निकल जाएगा, ऐसा ऐसा ब्रांच होगा और सभी ब्रांच पर यह स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बेल. एंड लास्ट टाइप इज कैपिचुलम. लास्ट इज कैपिचुलम. नाउ से देखें, कैपिचुलम, पेडंकल बिकम्स ब्रोड, फ्लैटेंड और कनकेव कन्वेक्स शेप. जो मेन पेडंकल है वह या तो इस शेप का हो सकता है या फिर इस शेप का हो सकता है. इन सम केसेज मे बी ओवल और राउंड. एंड पेडंकल इज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल. peduncle is called receptacle. Okay, on receptacle flowers are sessile. Sessile flowers are arranged in acropetal manner same है हम लोग पढ़ रहे सिंगोज. and each flower is called florets because it is not a complete flower. कोई एक बात करेंगे, एक पार्ट की बात करेंगे, वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है. सो इट इज कॉल्ड फ्लोरेट. फ्लावर्स में बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल. ओके, मैरीगोल्ड एग्जाम्पल टेजिड्स एंड सनफ्लावर. अगर हम सनफ्लावर की बात करें, दिस इज पेडंकल, रिसेप्टिकल, इन केस ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर का पेडिसेल का ऊपर का पार्ट जिस पर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होता है, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड थैलमस. तो फ्लावर में थैलमस है और वही कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में रिसेप्टिकल है. रिसेप्टिकल बियर्स फ्लावर्स. इन दिस इज द फिगर ऑफ सनफ्लावर.
in this flower more than one types of florets are present. पेरिफेरल पार्ट में है रे फ्लोरेट एंड सेंट्रल पार्ट डिस्क फ्लोरेट. ओके, पेरिफेरल पार्ट में रे फ्लोरेट और सेंट्रल पार्ट में डिस्क फ्लोरेट. रे फ्लोरेट इज स्टेराइल, मीन्स सेक्स ऑर्गन absent. रे डिस्क फ्लोरेट bisexual flower. Ray floret is responsible for pollination. It attracts insects only. While disc floret forms seeds, fertilization takes place. ठीक है ना, तो इसी में फर्टिलाइजेशन होगा, यही सीड का फॉर्मेशन करेगा. तो एग्जाम्पल है, मैरीगोल्ड्स की बात करें तो कुछ बाहर की तरफ लार्ज से पेटल्स वाला होगा, कलरफुल, दैट इज रे फ्लोरेट. सेंट्रल पार्ट जो है वह कहलाएगा डिस्क फ्लोरेट. ओके, एंड दिस इज सिंपल कैपिचुलम. दिस इज सिंपल कैपिचुलम and compound कंपाउंड कैपिचुलम का एग्जांपल अगर देखें तो इकाइनोप्स, इकाइनेटस. Echinops, Echinatus is the example of compound capitulum. ओके, तो आज हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट टाइप रेसिमोज का टाइप पढ़ लिया. दो टाइप और है, साइमोज एंड स्पेशल टाइप, जिसको कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. ओके.